ایک منچلا نوجوان تھا، روزانہ اس کے بالوں کی کٹنگ الگ ہوتی تھی۔ امام صاحب کو اس نے پیٹ میں درد کر دیا۔ روزانہ کہتا تھا امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ۔ امام صاحب بیچارے سیدھے، انہیں کیا مطلب، انہیں کیا پتا کون سی کٹنگ ہے۔ پیٹ خراب ہو گیا امام صاحب کا کٹنگ سنتے سنتے۔ ان کو تو بیچاروں کو یہی پتا آج منگل، کل کو بدھ، پرسوں کو جمعرات گھر جاؤں گا۔ انہیں تو یہی پتا بیچاروں کو فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، قرآن میں کتنے سپارے، کتنی دھڑی رہ گئی، کتنی رہ گئی، کتنی مل گئی۔ سیدھے آدمی بیچارے، انہیں کیا پتا۔ جمعے کو آیا، اتوار کے دن سے جمعرات کا حساب کتاب لکھنے لگتا ہے، گھر جانا۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف۔ اب وہ امام صاحب سے روزانہ کہتا تھا امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ۔ کبھی اس کے بال پیچھے کو، تو کبھی ادھر، تو کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، اجی ساری چیز اس کے بالوں پہ ہی۔ ایک دن اس کا چھجا، یہ بال نہ آگے کہ آدھے ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر۔ امام صاحب تو تھے ہی غصے میں، جمعرات کو جانے نہیں ملا کر۔ اب امام صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ امام صاحب بھی جمعرات کو جاتے ہیں کیا؟ اوہ یہ بات تھی۔ اچھا ارے اللہ کے بندے، کوئی بات نہیں، جانا چاہیے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، یہ سب کی کرامت ہے، سمجھے؟ بہرحال کیونکہ مجھے معلوم ہے پڑھانے والے اکثر بدھ سے ہی کپڑے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھو، چلو تو اب تم سنیچر کو جائیے، دن بدل دیجئے، میں متولی صاحب سے کہہ دوں گا، چلو۔ لیکن سنو، یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں ہنس لیے۔ اب ایک دن اس کے بال ادھر ادھر، امام صاحب غصے میں بولے ہاں بھائی ادھر آؤ۔ بولے جی حضرت۔ بولے کیا رات تمہارے مکان میں زلزلہ آ گیا تھا کیا؟ اللہ اللہ۔ بولے نہیں تو حضرت۔ تو بولے یہ چھجا کیوں پھٹ گیا؟ بولے کسی نے لٹھ مار دیا گیا رات۔ اللہ۔ ارے بولا حضرت تم نہیں پہنچو گے ہماری پہنچ کو۔ بولے اس میں پہنچ کیا؟ بولے حضرت یہ بھی کٹنگ ہے، کٹنگ۔ امام صاحب پھر پیٹ پکڑ لیے، یہ درد کرتے گا بیٹا۔ بولے یہ کیا کٹنگ ہے، تیرا چھجا پھٹا پڑا ہے۔ بولے حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ اللہ، کیا نام ہے بولو؟ تیرے اس نام۔ کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ اچھا انہیں اتنا جاڑا ستا رہا تھے جو الاؤ پہ جا کے بیٹھے، تمہیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی جو الاؤ چلا لیا تم نے۔ جلدی سکے در کو آ جاؤ، کٹنگ چینج کروانے گئے۔ اچھا توجہ رکھو۔ بولے اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ جب اتنا کہا تو امام صاحب کو تھوڑا غصہ آیا۔ بولے یار تمہارے ابا مجھے ادب سے بولتے، یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم علی جناب آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام۔ پھر انہیں غصہ آ گیا۔ بولے تیرے باپ میرے پیچھے نماز پڑھتے، میں گاؤں کا امام ہوں، سارے لوگ مجھے سلام کرتے، غیر مسلم بھی جھک جھک کے جاتے، قاری صاحب، امام صاحب، اور تو ابے تبے سے بولنا، ڈھنگ سے بول، ایسے بول محترم قبلہ محترم آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت محترم قبلہ کعبہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام۔ اللہ۔ امام صاحب پکڑ کے لے گئے، بولے چل اپنے باپ کے پاس چل شکایت کروں۔ بولے حضرت مت جاؤ حضرت، یہ ہے تیرے نام۔ اللہ۔ امام صاحب پھر غصے میں۔ اب جب معاملہ یہ ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت قدر کرتا ہوں، مگر حضرت کسی گانے میں یا کسی فلم میں یا کہیں نہ کہیں اس نے بتایا، حوالہ دیا کہ اس میں یہ نام رکھا گیا کٹنگ کا کہ تیرے نام۔ جب اتنا کہا ہے تو امام صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب کو غصہ آ جاتا ہے۔ امام صاحب بولے تو کیسا مسلمان ہے، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، ارے تیرا عالم یہ ہوتا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، اور مسجد میں جا کر کے تو وضو بنا کر کے مسجد میں بیٹھتا، مسجد میں جا کر کے عبادت کرتا، تو قرآن شریف پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے کے بعد اب نماز کا ٹائم ہوتا تو تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، تو نیت مانتا، نیت کے بعد قرات کرتا، قرات کے بعد رکوع میں جاتا، رکوع کے بعد پھر کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں جاتا، سجدے کے بعد پوری رکعت کرنے کے
बाद अत्तहियात में बैठ के सलाम फेर देता। नमाज पूरी करने के बाद इमाम साहब बोले तेरी आंखों में आंसू होते और तेरे हाथ ऊपर को होते और दुआएं करता होता और कहता या अल्लाह मैंने जो मस्जिद में आकर के कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी इबादत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी सारी इबादत तेरे नाम। अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह फरमाता ऐ बंदे तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान इसलिए अल्लाह, वो बातें आसान आसान करके बता रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में आ जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, ताकि समझ में आ जाए बातें। समझ में आ रही बात? लेकिन जिंदाबाद। अच्छा तुम लोगों के अंदर एक खूबी और है, बताओ क्या खूबी है? सुनोगे नहीं अपनी खूबी को या रहने दो? सोच रहे होगे यार बड़ी पोल खुल रही है। माशाल्लाह ये बच्ची शुरू से ही नोट देने अपने दादा के पास बैठी है, नवासी नाना के पास। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तुम लोग इतने शरीफ हो यार, सच बता रहे हो। अगर फूलों का हार होता ना तो पहले तुम्हारी गले में डालता मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने शरीफ हो, बताऊं शराफत कितनी है तुम्हारी। लैट भाग गई, बीबी को गाली बकरे। उस बिचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बताइयो? कम से कम इतने पागल तो काम अपना नहीं चल रहा, सर भी सुधर कर रहा। अल्लाह अल्लाह। आंगन में खड़े होकर गाली देता हजरत। वो बिचारी अपनी माँ को छोड़ कर आई हजरत, अपने बाप को छोड़ कर आई, अपने भाई को छोड़ कर आई, अपनी बहन को छोड़ कर, तुम्हारी खातिर छोड़ कर आई। तुम्हारे अब्बा को खाना दे रही है, अम्मा को दे रही है, स्कूलों की छुट्टी इतवार को है, मदरसे की छुट्टी जुमे को है, हर चीज की छुट्टी है, फैक्ट्री की छुट्टी, कारखाने की छुट्टी, जॉब में एक दो छुट्टी, सबकी छुट्टी होती, मगर चूल्हे की एक दिन छुट्टी नहीं हुई। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सुबह को नाश्ता देगी, दोपहर को खाना, शाम को खाना। तुम्हें नजला हो जाए तो गर्म पानी, तुम्हारे सर में दर्द हो जाए तो तेल डाले, सर दबाए, पांवों में दर्द हो जाए तो पांव दबाए। ये क्या प्लास्टिक की है? उसकी बेचारी के सर में दर्द नहीं होता होगा। तुम्हारे अब्बा को खाना दे रही है, मगर बाज आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अगर उसका भैया आ जाए ना, अब वो चाय बनाने बैठ गए, कह रही सुन रहे हो, जरा 10-20 रुपए के बिस्किट लियो, नमकीन लियो और थोड़ा सा मिठाई भी लियो। अच्छा तेरा भैया मीठा खाएगा? आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कंगाल, इतनी गाली देता है बेचारी। अब वो बेचारी चूल्हे पे बैठे हुई चाय बना रही है और ये बुतर बुतर कह लियो ना, छोड़ो वो सुन ना ले। अच्छा इन भिखारियों से कह दियो अब ना आए। बात इतना बदतमीज शौहर है। तुम्हारे अब्बा को तो वो खिला रही, भैया को खिला रही। बीबी बन के रह सकती है क्या वो? नौकरानी बन के रह सकती है, बीबी बन के नहीं रह सकती। अपने घरों का माहौल सुधारो। बात बहुत ज्यादा कुबड्डा इंसान है, माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, दादी, अजी पूरे शजरे को गाली। आंगन में खड़े और औरतें छतों पे खड़े होकर गालियां सुन रही हैं और मुस्कुरा रही, देखो कितनी गालियां दे रहा, कितनी गालियां दे रहा। और बात समझे ऐसे हालात है, मगर सब औरतें ठीक नहीं है। बात मेरी बहन भी ऐसे ही है, जब तक महीने में इसकी सर्विस ना हो ये भी सीधी नहीं चलती है। अब तो मतलब की हो गई होगी तुम्हारे। अच्छा इमाम साहब सही बात है कह रहे हैं जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब के जुमेरात की इनकी छुट्टी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इन्हीं से हंस लेता हूँ। जैसे बेचारा ये थका मांदा आया घर बाहर से, एक तो वैसे बेचारा गमज़दा था, काम अच्छा नहीं चल रहा था,
اور جیسے آیا بیچارہ غمگین تھا، اس نے کیا کرا، نکالا سینڈل اور نکال کر بچوں کے تڑا بچے پے 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 کر، ایک ادھر کو بھاگ رہا، ایک ادھر کو بھاگ رہا، ایک ادھر کو بھاگ رہا، ناک یہاں لگ رہی ہے بچوں کے، کسی کا نیکر پھٹا ہوا، کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی، وہ پے پے کر کے بھائی ٹٹی پڑی مار رہے ہیں۔ شوہر کو تو غصہ آئے گا، ایک تو ٹینشن میں تھا، بولا کیوں مار رہی ہے؟ تو بولی چپ کے رہی ہو، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے، اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے نا، اس نے اور سر پہ چڑھا لیا، اماں کو اور لپیٹ لیا۔ تو بولا سن، اماں کا نام مت لی، اگر اماں کا نام لیا نا تو 1 2 3 کر دو۔ جب اتنا کہا، اس نے بھی دوپٹہ پھینکا اور بولی اگر ایک ابا کا ہے تو ابھی کر کے دے۔ اتفاق سے وہ بھی ایک ہی ابا کا تھا، اس نے بھی جب طلاق 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 طلاق، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی، اتنی طلاقیں دی، اتنی طلاقیں، اب جب سانس ٹوٹی تو طلاق ٹوٹی، اب بیٹھے ہوئے رو رہے، وہ ادھر یہ ادھر۔ 1 گھنٹے کے بعد غصہ اترا تو سر کھجا کے بولا پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا، نشہ کر لیا میں نے، سگریٹ میں بھانگ تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا دماغ خراب ہے، 15 دن سے طبیعت خراب نہیں ہے۔ بی بی سے بولا میں نے تم سے کچھ کہا ہے، کوئی طلاق 1 آدھ مرتبہ دی، تم نے سنا کیا؟ بی بی بولی ہاں تم نے 1 مرتبہ طلاق دی تھی، جھوٹی کہیں گی، 1 مرتبہ دی تھی، جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق۔ اب مفتی صاحب، شوہر اگر 1 مرتبہ طلاق دے دے تو ہوئی، پوچھو ابھی گاڑی میں مسئلہ آیا تھا، پوچھو ابھی گاڑی میں، بہار سے میں نے کہا وہاں یا تو مجھے لکھ کے دو یا وہاں بڑا مدرسہ موبائل میں نہیں بتاؤں گا، ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہو تو صحیح بات۔ ایسے حالات، اللہ اللہ نبی کی زندگی تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایسا فرق اٹھانے جا رہا ہوں نا یار، تمہیں اپنے گھریلو زندگی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے بولو؟ حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ۔ اب میرے نبی زندگی گزارنے کا طریقہ، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں۔ میرے نبی آئے صبح صبح، السلام علیکم، تم اپنے گھر جا کے بی بی کو سلام کرتے ہو؟ اچھا، میں کہتا ہوں بہت کرتے ہیں۔ اچھا، امام صاحب کرتے ہیں تمہارے؟ اچھا کرتے ہیں، سمجھے؟ بی بی کو سلام کرنے میں ناک نہیں کٹے گی، اگر ناک کٹتی تو میرے نبی سلام نہیں کرتے۔ کیا بات ہے۔ سلام کیا کرو، اور بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے۔ ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے سلام کیا، حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آ جائے، تشریف لائے، بیٹھ جائے۔ آقا آ گئے، حفصہ کہنے لگی آقا، میرے نبی کی بیوی ہے نا، یہ مومنوں کی ماں ہے، کہنے لگی آقا آج میں یہ چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی بولے حفصہ میں اسی لیے تو آیا تھا تاکہ آپ مجھے کھانا کھلائے۔ حضرت حفصہ جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہے، خوشی کے مارے ٹھکانا نہیں ہے، میرے آقا گھر آ گئے، کھانا کھائیں گے، کھانا تیار کر دیا، دسترخوان لگ گیا، جیسے ہی لگا میرے نبی کی بی بی کہنے لگی آقا تناول فرمائے۔ نبی بولے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفصہ بھی آئی، کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم کھانا کھاتے وقت بی بی کی خیریت لیتے ہو؟ پوچھتے ہو 1 آدھ مرتبہ آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ؟ محبتیں ایسے ہی بڑھیں گی کیا؟ پوچھتے ہو کیا؟ یار یہ میرے نبی ہے، اصلی سیرت سنا رہے ہو، اصلی جو نبی کے گھر میں زندگی گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا حفصہ بیٹھ جاؤ، حضرت حفصہ بیٹھ گئی، جی آقا۔ کہا حفصہ کھاؤ نا، کہا آقا میرا روزہ ہے۔ حفصہ کیا بولی؟ میرا روزہ، نفلی روزہ تھا، نفلی۔ کہا میرا نفلی روزہ، اگر اجازت دے تو توڑ لوں یا رہنے دو؟ نبی بولے رہنے دو چلو۔ حضرت حفصہ نے 1 لقمہ توڑا، سبزی میں لگایا،
आका की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उसे जब खाया तो इतना कड़वा लगता है, हफ्सा ने भूल में या खुशी में याद नहीं रहा, 2 मरतबा नमक डाल दिया। इतना कड़वा मेरे नबी से अब ना अंदर लिया जाता ना बाहर आता। कभी इधर घुमा लेते, कभी इधर। चेहरे पर नमक के असरात, कड़वाहट के असरात जाहिर होने लगे, पेशानी पे पसीना आ गया। हजरत हफ्सा ने देखा आका परेशान है, डर गई, कांप गई, लरस गई, कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? समझ गई खाने में कोई बात है। हफ्सा को पसीना आ गया डर के मारे। मेरे नबी ने तमाचा नहीं मारा, गाली नहीं दी, डंडा नहीं मारा, मेरे नबी ने उल्ली पल्ली नहीं सुनाई। जब हफ्सा को पसीना देखा नबी मुस्कुराने लगे और नमक का वो लुकमा खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मेरी हफ्सा का दिल न टूट जाए। अल्लाह अल्लाह। और अपना क्या हाल है? अल्लाह, अगर तुम्हारी बीवी, अव्वल तो तुम कहते ही नहीं, और अव्वल तो तुम्हारी बीवी का खाने में बरकत ही नहीं होती है, पहले ही ना ऊपर से निकाल के आधी रोटी या 1.5 रोटी मार देती है। अब शौहर ने कहा आजा खाओ ना, कह रही मुझे भूख ही नहीं लगती है। भूख क्या लगेगी जब 1.5 रोटी पहले मार दी तो? कह रही मुझे कोई चूरन उरन दिलवा दी और भूख नहीं लगती। कहता हाँ ले लिए चूरन, चल बैठ उधर जा। ये भी चूरन देता। हजरत अफसान जब चेहरे पे पसीना आया, अल्लाह तवज्जो रखो मेरी तरफ, नबी मुस्कुरा करके, और अगर तुम्हारी बीबी इतना नमक का तेज दे देती, लुकमा बदो देती नहीं तो ढंग नहीं, ऐसे रख रखा के फेंक छोड़ दे, खाओ मत खाओ, समझे ऐसे। मगर अगर दे भी देती और मुंह कड़वा हो जाता तो ढलिया उधर होती, सब्जी की प्याली इधर होती और ये आंगन में गाली देता होता या फिर जूता पकड़ के धड़ा पड़ोती होती। ये तुम्हारा, वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वैसे इतने नारे लगाएगा लगता है बड़ा मुत्तकी परहेजगार। और नारे कौन ज्यादा लगाते हैं? उलमा को छोड़ करके अवाम में से जो बड़े वाले खड़मुत्तू होते हैं। खड़मुत्तू समझ रहे हो, खड़े खड़े मूतने वाला। लेकिन मेरे नबी की बीबी हजरत हफ्सा को जब पसीना आया तो नबी ने वो लुकमा खा लिया, मुस्कुरा दिए। हफ्सा ने ठंडी सांस ली और कहने लगी या अल्लाह मैं तो डर गई थी आका, आपकी परेशानी को देख के क्या हो गया था। मेरे नबी सब छुपा गए, प्यार में एक लुकमा हफ्सा ने और तोड़ के दे दिया। हजरत हफ्सा ने वो लुकमा जब दिया तो नबी ने वो भी खा लिया, पूरा प्याला सब्जी की। नबी इतने नमक की खा गए मगर हफ्सा को डांटा नहीं, गालियां नहीं दी, डांटा नहीं, फटकारा नहीं। और जब सब्जी खत्म हो गई तो नबी बोले हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? अल्लाह। हजरत हफ्सा दौड़ती आका भी लाई, बड़ी खुश थी ना कि आका बहुत खुश है। और क्या पता था ये ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, पता ना चल जाए इसलिए और ज्यादा खुश है। अल्लाह। जल्दी से गई, पूरी हांडी पोंछ कर आका लीजिए खा लीजिए। अल्लाह, अब 2-4 लुकमे खाए, कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूँ आज। अल्लाह। सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहती हूँ आज। मेरे नबी बोले हफ्सा क्या कह रही? का आका आज बड़े खुश नजर आ रहे। आका अगर इजाजत हो तो कुछ मांग लूं। नबी बोले मांगो। सुभान अल्लाह, क्या मांगते? और अगर तुम्हारी बीवी कहती मेरे सरताज कुछ मांगना चाह रही हूँ तो तुम कहते रुक जाओ जरा, अभी मांगियो तू देख, अभी मांग, जरा जूता उठा के ला, अभी तुझे दूंगा, देख क्या मांगेगी। ये तुम्हारा कल्चर है।
नबी का माहौल ये नहीं था, इसलिए ये बातें बता रहा हूं। अगर नबी के गुलाम बनना ना तो मियां बीवी की जिंदगी अच्छे से बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो क्या मांग रही हो? वो कहने लगी आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, रुपये कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका जो खा रहे हैं अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा खाती। आका मेरा रोजा चाहती हूँ थोड़ा सा झूठा छोड़ देना ताकि आपका झूठा और मेरा तबर्रुक हो, मैं इसी से अपने रोजे की इफ्तार करूं। सुभान अल्लाह सुभान नबी बोले हफ्सा कोई और चीज मांग लो। अल्लाह। नबी समझे अब खुल जाएगी बात, अब पोल खुलेगी। नबी बोले हफ्सा कुछ और मांगो, अच्छी चीज मांगो, जन्नत मांगो, सोना चांदी मांगो, कोई अल्लाह। बड़ी चीज। हफ्सा बोले नहीं आका आज तो आपके झूठे से अच्छा मेरे लिए कुछ है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब नबी आका ऐसे हैं जो कोई मांगता है तो मेरे नबी नहीं फरमाते ही। आय हाय हाय बेशक बेशक। कहा हफ्सा मांगो का आका झूठा। नबी बोले ठीक है। नबी ने छोड़ दिया। अल्लाह जैसे ही छोड़ा उन्होंने रख दिया ढक के, बड़ी खुश है, कह रही आज तो मेरे लिए तवर्रुक है तवर्रुक है तवर्रुक है। सुभान अल्लाह। जब इफ्तार का टाइम हुआ वुजू बनाया, रोटी लेके और वो सब्जी लेके जब बैठी और पहला लुकमा जब मुंह में दिया तो इतना कड़वा, एक मिनट मुंह में नहीं रखा गया, फौरन थूक दिया और आका याद आ गए। अल्लाह। वो 2 प्याले सब्जी अल्लाह। सिर्फ बीबी को तकलीफ ना देने की वजह से इतनी नमक की खा गए। अगर चाहते तो मुझे सजा दे सकते थे, अल्लाह। ये मेरी गलती थी। अल्लाह इतना रोई, चीखने लगी, कहने लगी मेरे आका को बुला दो, सोने आका प्यारे आका को बुला दो, ये नबी की जिंदगी है। नबी की बीबी बोली जल्दी बुला दो। बीबियां कहने लगी अरे कहीं पेट में दर्द हो तो बोलो, हाथ पांवों में दर्द हो तो बोलो। कहा नहीं नहीं आज मेरे आका को बुला दो। जैसे ही नबी तशरीफ लाते हैं, कहा हफ्सा की तबीयत नासाज है आका चले। जैसे ही नबी तशरीफ लाते हैं हजरत हफ्सा कदमों पे गिर जाती है और जब कदमों पे गिरती है, कदमों पे गिर करके कहती है आका माफ कर दो, आका माफ कर दो। जब इतना कहा आका इतने नमक की सब्जी खा गए आका मुझे पता भी नहीं चला आका, मैंने धोखे से 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा आका, माफ कर दो आका माफ कर दो। जब इतना कहा मेरे नबी ने अपनी बीबी के मोढ़े पकड़े, हाथ नहीं मारा, लात नहीं मारी, गाली नहीं दी। ओ गाली देने वालों सुन लो, मेरे नबी ने अपनी बीबी के मोढ़े पकड़े, उठा करके सीने से लगा लिया। कहा हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ के आई हो, अपनी माँ को छोड़ के आई हो, अपने भाइयों को छोड़ के आई हो। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी ऐसे खाना पड़े तो मोहम्मद अरबी उफ तक नहीं कहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अपने हालात देखते ही हो खाली मूली लड़ाइयां निकाल लिया, कई बच्चों का बाप हो गया मगर एक दिन का सुकून नहीं। सुबह में लड़ाई, दोपहर में लड़ाई, शाम में लड़ाई, किच 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 किच। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है, उनकी बीवी रोजाना लड़ती थी। वो इस चक्कर में आए थे कि तावीज बना देंगे। मिले बोले हुजूर बहुत परेशान हूँ, 3 बच्चे हो गए मगर एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खाया। बोले क्यों? बोले सुबह में खिच खिच, दोपहर में खिच खिच, शाम में खिच खिच, मैं परेशान हूँ। हुजूर तावीज बना दीजिए, बीबी बड़ी अकड़, बड़ी लड़ालू है। अच्छा मैंने कहा देख तावीज तो नहीं बनाऊंगा, नबी की जरा 1-2 बातें बता दो। मैंने कहा जब खाना खाने बैठो तो पहला लुकमा तोड़ के अपने हाथ से दे देना बीबी को। बोले हुजूर गड़बड़ हो जाएगा, सर पे आसमान उठा ले। अरे मैंने कहा दे दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, वैसे भी तो तू लड़ी रहा। उसने जो था पहले दिन दिया तो आंखें टेढ़ी ऐसी मगर ले लिया जबरदस्ती से। दूसरे दिन हुआ तो आंखें और ठंडी हो गई।
तीसरा दिन जब आया तो हाथ पकड़ के उसने वो तो अपने मुंह में ले लिया और दूसरा लुकमा तोड़ के मुझे ही खिलाते रहोगे, खुद नहीं खाओगे? बोले हजरत अब जिंदगी इतनी शानदार गुजर रही है, पहले दौलत थी, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था, मगर एक दिन का सुकून नहीं था। प्यारो अपनी जिंदगी ना ऐसी गुजारो, अगर तुम चटनी से भी खाओ ना तो मिल बांट के खाओ मियां बीवी, अगर नमक से भी खाओ यार, प्यार की जिंदगी गुजारो यार, प्यार की जिंदगी। कितने नालायक ऐसे हैं कि कई कई बच्चों के बाप हो गए, मगर आज भी उनकी वीडियो पकड़ी जा रही है दूसरी औरतों के साथ, आज भी वो मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं। किसी की बेटी का दिल मत तोड़ो यार, वो तुम्हारे घर में बीवी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितनी बहनें बच्ची हैं ऐसी, कई कई बच्चों की माँ हो गई, इतने संभाल के अपना सोना चांदी नहीं रखती है जितनी संभाल के मोबाइल रखती है। मोबाइल में एसएमएस चल रहा है, बातें चल रही। मैं अपनी बहन से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो यार। नबी की जिंदगी, असल जिंदगी ये है कि तुम अपने घर को संभालना। तुम्हारे जलसे का मकसद यही है, समझे? माँ बाप की इज्जत करो, बुराइयों से बचो, हर बुरी चीज से बचो, और इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ प्यारो, आज के बाद तुम्हें लगे कि हाँ हमारी जिंदगी बदल दी गई। और ये जो हसद है ना, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो, किसी से मत लड़ो। मोहब्बत, आपस में इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मोहब्बत, प्यार से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात तुम्हें दे करके जाता हूँ। हम लोग नारा लगाते कि नारे तकबीर, लगाते नहीं लगाते, नारे रिसालत, कहते ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आखिर में एक नारा मैं लगा दूं, बोलो नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बात सच्ची है झूठी? नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना? हाथ उठाइयो, देखो कौन कौन नहीं छोड़ेगा। हाथ उठा, देखो कौन कौन नहीं छोड़ेगा। तुम्हें एक बात और है, खुदा का वास्ता, उठाए रहो, उठाए रहो, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, अगर तुम झूठाई से उठाते हो तो मत उठाना, और सच्चाई से उठाते हो खुदा के डर के मारे तो उठाए रहना, समझे? उठाए रहना। अगर खुदा से डर के उठाते हो तो उलमा इसलिए उठाएंगे ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए, समझे? अब रख लो। कहते क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? तुमने कभी नबी का दामन देखा? मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ, 1400-1500 साल पहले थे। तुमने किसी ने देखा नबी को? उनके दामन को देखा? जब जो चीज देखी नहीं जा सकती पकड़ी भी नहीं जा सकती, जब तुमने देखा नहीं तो फिर पकड़ा क्या? सब कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो आज तक कोई ये कह दे किसी मौलवी ने तुम्हें पकड़ा नहीं? जलसों में भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं बताता हूं, सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है, ये जो दामन है ये नहीं है। फिर दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब है नबी का तरीका, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। बोलो इसका मतलब यही है। और मेरे नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी जिंदगी में दाढ़ी नहीं मुड़ाई है, अबू बकर सिद्दीक ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उमर फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। नबी का तरीका ये है कि दाढ़ी ना मुड़ाना, तो जो नबी का तरीका है वही नबी का दामन है। तुमने मुझसे वादा किया कि इंशाअल्लाह नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशक, सुभान मैं देखता हूँ कौन मेरे हाथ से हाथ टच करेगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखता हूँ आज माशाअल्लाह, कौन आता है ऐसा। एक भाई ऐसा आ जाओ जिसकी दाढ़ी है, एक भाई ऐसा आ जाओ जिसकी दाढ़ी है, ताकि शर्म का जो पुल बंधा हुआ ना, माशाअल्लाह बुजुर्ग उठ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाँ, कम से कम नारे का जवाब तो दे। नारे। अब देखो ये बुजुर्ग उठे इसलिए उठाए ताकि ये पुल जो बांध बंधा हुआ थोड़ी शर्म लगती है, उठ जाए। इनकी तो जबकि दाढ़ी है, समझे? अब देखता हूं मैं वाकई कि हम लोग सच्चाई पे है कि नहीं है। वैसे कहते हैं नबी का दामन। कोई एक भाई भी ऐसा उज्जवल में, उज्जवल नाम है ना, उज्जवल में, कि जिसकी दाढ़ी ना हो और वो ये कहे कि आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। आ जाओ जैकेट वालों, आ जाओ, उठ जाओ, तुम देर मत करो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जैकेट वालों उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, देर मत करो, तुम उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। दूसरों को परेशान मत करो,
दूसरों को परेशान मत करो, तुम उठना तो उठ जाओ। देखो हमारे भाई आ गए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान देखता हूँ आज कौन है, ये कहे कि हाँ इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। समझा? अरे वाह, ये भी सुभान अल्लाह, सुभान बोले अल्लाह, इंशाअल्लाह जिंदाबाद, दाढ़ी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे दो भाई, तकबीर, दो भाई। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा अरे कॉन्फ्रेंस। उठ गया, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब देखो नाना कब उठते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। देखता हूँ बिटिया के नाना कब उठते हैं। इंशाअल्लाह उठेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह एक दिन वो आगा कि ये भी उठेंगे, समझे? एक दिन वो आगा ये भी उठेंगे। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बड़े बुरे फंसे हम, फंसे नहीं, मैं तुम्हारी फांस निकाल लूं, बैठ जाओ। अल्लाह ताला ना दिल में हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो और इस दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। सुभान अल्लाह। इस सीने को क्या बनाओगे? मोहब्बत रसूल का। कौन कहता है, आखिरी शेर और खत्म। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखता हूँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है, हाय हाय, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, दिल जिंदाबाद, की जिंदाबाद। तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना बोलो ना। सुभान अल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, माशाअल्लाह, मदीना। पता नहीं किस किस की कबूल हो जाए, क्या बात है। सब लोग कहेंगे दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोतिया जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए, सब लोग पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, बेशक ए महबूब आप ऐलान कर दो, बेशक फजीलत, शर्फ, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है वो अता करता है।
میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما آمین اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے ہماری کوئی بہن یا بھائی ایسا ہو جس کی شادی ہو گئی اس کے یہاں اولاد نہیں اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرما دے کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے جتنے بھی جلسے میں شریک ہوئے اے اللہ سب کے کام کاج کو اچھا کر دے سب کے یہاں کی آفتیں بیماریاں دور کر دے اور اس پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم